Sai Ram. Good. How are you? You are? Ready? Harihara Om Shankara Om. Harihara Om Shankara Om. Harihara Om Shankara Om. Harihara Om Shankara Om. Narayana Hari 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 Om. Kesava He Madhava He. Kesava He Madhava He. Kesava He Madhava He. Kesava He Madhava He. Narayana Hari Om. Narayana Hari Om. Narayana Hari Om. Narayana Hari Om. Paramatma Antaryami. Paramatma Antaryami. 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 Paramatma Antaryami. Paramatma Antaryami. Narayana Hari Om. Narayana Hari Om. Narayana Hari Om. Narayana Hari Om. Harihara Om Shankara Om. Harihara Om Shankara Om. Harihara Om Harihara Om Shankara Om. Narayana Hari Om. Narayana Hari Kesava He Madhava He. Kesava He Madhava He. Narayana Hari Narayana Hari Paramatma Antaryami. Antaryami. Paramatma Antaryami. Narayana Hari Narayana Hari Sainath Baba Maharaj Ki My humble pranams at the lotus feet of our Bhagwan. भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। Thank you, sir, for your fine words of introduction and welcome. आदरणीय महोदय, आपके इस मेरे परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And I thank all of you for inviting me for the second time. और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे पुनः दूसरी बार बोलने का मौका दिया।
This is not the end of all. इससे सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। We are going to meet many times more in future. हमारे वाले दिनों में और भी कई बार आप सबसे मिलेंगे। This is not the end. ये अपने आप में सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता है। Yesterday, we have known certain qualities of youth. कल हमने देखा कि युवाओं में क्या-क्या गुण होने चाहिए। I presume you remember them. मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वो सब याद होंगे, है ना? याद है? Well, as we see the newspapers, it's most disappointing that youth are not able to face the realities of life. जब मैं अखबार पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत निराशा होती है कि आज के युवक आने वाली सच्चाई को झेल नहीं पा रहे हैं, सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं। Few days ago, a father came to me and said, "Mr. Neil, my son did his B.Tech. He didn't get a job, so he ran away from home. Would you please tell Baba to send my son back to house?" कुछ दिनों पहले एक निराश पिता मेरे पास आए और कहने लगे कि मेरे बेटे ने B.Tech की डिग्री हासिल की है, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिली और इसलिए वो घर से भाग गया है। क्या आप अपने बाबा से अनुरोध करेंगे कि मेरे बेटे को वापस घर भेज दें? We also find some of the youngsters totally frustrated because they lose their grades at the final examination. हमने कई बार ये भी देखा है कि बहुत सारे युवा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त न कर पाने के कारण घोर निराशा में डूब जाते हैं। Something wrong with us. शायद हमें कुछ गलत है, कुछ कमी है। Please remember this. हमेशा ध्यान रखें। Always remember this. हमेशा इस चीज को ध्यान रखें। Life is a challenge. जीवन एक चुनौती है। Life is a challenge. It is not a bed of roses. जीवन एक चुनौती है, ये फूलों का गुलदस्ता नहीं है, ये फूलों की पाती नहीं है। You cannot expect everything to happen as you wish. आप ये हमेशा ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि जो आप चाहेंगे वैसा ही होगा। There will be bumps and jumps and jolts, lashes and slashes, ups and downs in life. जीवन में उतार चढ़ाव, मारपीट, उछल कूद ये सब होता रहेगा। It is not a smooth way. ये इतनी आसान राह नहीं है। Life is full of challenges. और जीवन चुनौतियों से भरा है। Shall we run away from the challenges? तो क्या हम उन चुनौतियों से भाग खड़े हों? Should we be afraid of these challenges? क्या हमें इन चुनौतियों से डरना चाहिए? Can we escape from challenges? क्या हम इन चुनौतियों से बच सकते हैं? Remember, a coward escapes from a challenge. ध्यान रखें, केवल एक डरपोक व्यक्ति ही चुनौती से भागता है। A weak fellow is afraid of a challenge. एक कमजोर आदमी चुनौतियों से भागता है। But remember, life is a challenge. Be prepared to meet it. Life is a challenge. Meet it. और इसलिए ध्यान रखें कि जीवन एक चुनौती है और आपको इसका सामना करना ही है। You are ready to meet the challenge? क्या आप इस चुनौती को झेलने के लिए तैयार हैं? Yes. Say yes. Why not? Yes. Because we are not kids. We are not cowards to run away, escaping challenges of life. आप बच्चे नहीं हैं, आप डरपोक नहीं हैं कि चुनौती से भाग जाएंगे और इसलिए जोर से कहें हाँ, हम सामना करने को तैयार हैं। If you hit the ball, hit it, it will rise more and more, higher and higher. जब आप गेंद को नीचे फेंकते हैं, तो जितनी ताकत से फेंकते हैं, वो उतनी जोर से उनको उछाल मारती है। A failure today will give you double success tomorrow. आज की आपकी एक हार कल आपको दुगनी जीत देगी। Let's not be afraid of failure. और इसलिए हार से डरने की जरूरत नहीं है। Let us not run away from the challenges of life. और इसलिए जीवन की चुनौतियों से भागने की जरूरत भी नहीं है। We know that life is full of challenges. हम जानते हैं कि जीवन चुनौतियों से भरा है। There was one man born in this country. एक व्यक्ति जो इस देश में पैदा हुआ था,
That man wanted to run away from his responsibility. और वो अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता था। That man was not prepared to face the challenge of life. और वह व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। That man has forgotten his fundamental duty. और वह अपने मूलभूत कर्तव्यों को भूल गया है। He happens to be the king. और वह एक राजा है। He has to protect everybody. उसे सबकी रक्षा करनी है। And he has to fight. और उसे युद्ध करना है। But he wants to run away. और वो भागना चाहता है। He wants to escape. और वह सबसे छुपना चाहता है। He is not ready to face the challenge of life. और वो सच्चाइयों को, जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहता है। At that time, Krishna made him get up, stand like that, you fellow. और उस समय भगवान कृष्ण ने उससे कहा कि खड़े हो जाओ और चुनौतियों का सामना करो। That Sai youth leader in those days has this name Arjuna. और साई युवाओं उस समय जो नेतृत्व था उसका नाम था अर्जुन। Arjun is our name of everybody. Arjun, everyone is Arjun. और आप सभी जो है अर्जुन के समतुल्य हैं। The meaning of Arjun is white. White. अर्जुन का मतलब होता है श्वेत, सफेद। You are white and bright. There is no doubt about it. और आप सभी न सिर्फ धवल हैं, उज्जवल हैं, सफेद हैं, बल्कि आप सभी ब्राइट हैं। And this Arjun wanted to run away from his responsibility like you. और ऐसा अर्जुन अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता था। He is not ready to face the challenges like you. और वो चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहता था। Then Lord Krishna came and said, "Come on, stand there. You cannot run away." और तब भगवान कृष्ण ने आकर के कहा कि चलो वहाँ खड़े हो जाओ और तुम वहाँ से अब भाग नहीं सकते। You are stupid. तुम एक मूर्ख हो। You don't know anything. तुम्हें कुछ नहीं पता। You have forgotten that you are a king. तुम भूल गए कि तुम एक राजा हो। Is not a shame on your part to run away from the battlefield? इस तरह से युद्ध क्षेत्र से भागना तुम्हारे लिए शर्म की बात है। It is not befitting of a kshatriya to run away from the battlefield. एक क्षत्रिय के लिए युद्ध क्षेत्र से इस तरह भागना शोभा नहीं देता है। Like that, Lord Krishna gave him calcium sandals injections to Arjuna. और उस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कैल्शियम सैंडोज के इंजेक्शन के डोज दिए। And Arjuna, who was weak and weak at the time, और तब अर्जुन जो उस समय बहुत ही कमजोर और मीरी प्राणी हो गया था, he got up. I'm ready now. और वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि अब मैं तैयार हूँ। And then Krishna says, और फिर भगवान कृष्ण ने कहा, "Are useless fellow, you stand there. That's all. अरे तू मूर्ख, खड़ा रह चुपचाप बस, अभी भाव मत खा। I'll make you fight. भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा लड़ना कैसे है। I'll make you win. मैं तुम्हें जीतना सिखाऊंगा। You are just there. That's all. तो बस वहाँ सिर्फ खड़े रहो। I manage the show." पूरा खेल मैं भी खेलूंगा, तुम केवल खड़े रहो। Everyone here has Lord Krishna, Sai Krishna. और आप अर्जुनों के लिए भगवान साई कृष्णा है उसी अवतार में। And he is ready to fight और वो आपके लिए युद्ध लड़ने को तैयार है। and keep you there. That's all. और आपको केवल वहाँ खड़े भर रहना है। Mam anusmaran yudhyasya cha bharata. You fight thinking of me, said Krishna. भगवान कृष्ण ने कहा था कि तुम मेरा स्मरण करते हुए युद्ध लड़ो। I will do it. मैं करूंगा तुम्हारे लिए। Therefore, boys and girls, और इसलिए भाइयों और बहनों, you get the credit. आपको इसका पूरा श्रेय मिलेगा। You are going to the winner. आप जीतने वाले कहलाएंगे। Because क्योंकि the fighter is Sai Krishna there. क्योंकि आपके लिए योद्धा भगवान साई कृष्णा होंगे। Arjuna could face the challenge of life because of the support of Krishna, or else he is a useless fellow. अर्जुन युद्ध के वक्त चुनौतियों का सामना इसलिए कर सके क्योंकि उनके पीछे भगवान कृष्ण का सपोर्ट था, भगवान कृष्ण का हाथ था, वरना वह एक बेकार प्राणी था। But Arjuna has some good qualities. लेकिन फिर भी अर्जुन में कुछ अच्छे गुण थे।
He felt very bad in the beginning. शुरुआत में उसे बहुत खराब लगा था। He felt very sad in the beginning. उसे शुरुआत में बहुत ही बुरा लगा। He started crying. वह रोने लगा। Why should I lose my beloved people and relations? उसे लगा कि मैं अपने ही परिवारजनों का, अपने ही रिश्तेदारों का क्यों कत्ल करूं? What is it I get by killing my people? मुझे अपने ही लोगों का की हत्या करने से क्या मिलेगा? Should I kill my teachers? क्या मुझे अपने गुरुओं की हत्या करनी चाहिए? Should I kill my blood relations? क्या मुझे अपने रिश्तेदारों का हत्या करना चाहिए? What do I get at the end? मुझे इससे क्या मिलेगा? Why should I fight? और मुझे क्यों लड़ना चाहिए? That was the position of Arjuna. अर्जुन की ऐसी मनोस्थिति हो गई थी। He sought the advice of Krishna. और तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से इस मामले में मंत्रणा की, उनसे मार्गदर्शन मांगा। Krishna prompted him to proceed. और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम आगे बढ़ो। Krishna encouraged him to act and fight. भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरणा दी कि तुम आगे बढ़ो और युद्ध करो। So what Arjuna did was, he cried in front of God, not in front of others. और इसलिए अर्जुन ने क्या किया? वह भगवान कृष्ण के सामने रोए, लेकिन बाकी लोगों के सामने उन्होंने आंसू नहीं बहाए। That's what is called Arjuna Vishada Yoga, first chapter of Bhagavad Gita. और इसलिए भगवत गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। Vishada, crying. विषाद अर्थात रोना, दुख। This Vishada crying is yoga, spiritual path. इस प्रकार भगवान के सामने रोना भी एक तरह का योग है, एक तरह का आध्यात्मिक पथ है। When you cry, it is not yoga. जब आप रोते हैं तो वो योग नहीं है, When I cry, it is not yoga. और जब मैं रोता हूँ तब वो भी योगा नहीं है। Why the crying of Arjuna has become a yoga? लेकिन अर्जुन का रोना एक योग क्यों है? Because he cried at the feet of God. क्योंकि वो भगवान के चरणों में जाकर के रोए। He fell at the feet of God. तो भगवान के चरणों में गिर पड़े। He cried and wanted his guidance. क्योंकि वो रोए और भगवान से मार्गदर्शन चाहते थे। Therefore, Vishada of Arjuna has become yoga. और इसलिए अर्जुन का रोना भी एक योग बन गया। Therefore, boys and girls, और इसलिए बच्चों, before you do anything, इसके पहले कि आप कुछ करें, when you are at crossroads, जब आप किसी तरह के, when you are not able to decide to do or not, जब आप किसी भी कार्य को करने या न करने के अनिर्णय की स्थिति में हो, go to him, Sai Krishna. और तब भगवान साईं कृष्णा के चरणों में जाएं। All at his feet, उसके चरणों में गिर पड़े, cry there. रोए वहां जाकर के, It becomes your yoga. और तब वो आपका योग हो जाएगा। Ultimately, you will be victorious. और अंततः तुम विजयी होगे। Ultimately, you are going to the Vrinda. और अंततः आप विजयी ही होंगे, विजयश्री आपको हाथ लगेगी। Because I am giving Arjuna as an example because he is a youth leader. मैं आपको अर्जुन का उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि वो एक युवा नेतृत्व था। Arjuna has no other thought other than the command of Krishna. अर्जुन के मन में भगवान कृष्ण के आदेश के अलावा कोई मन में दूसरी बात नहीं थी। He acted strictly according to the words of Krishna. अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का शब्दशः पालन किया। He did not make use of his own thinking in a wayward manner. और अर्जुन ने किसी भी तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया ताकि वो किसी तरह से भगवान के दिए गए मार्ग से डिग सके। He knows how to be obedient to Krishna. और इसलिए अर्जुन को मालूम था कि भगवान के आज्ञाकारी किस प्रकार होना है। Therefore, let all of us follow the command of Krishna, the teaching of Sai Krishna. और इसीलिए we win the battle of life. और इसीलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जीवन की इस चुनौती में जीतने के लिए भगवान साईं कृष्णा के आज्ञाओं का अक्षर पालन करें। You know what Krishna tells Arjuna? क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? Repeatedly he says, Kuru Nandana, Kuru Nandana. Nandana, my dear son, Kuru, do it. Kuru, do it. Nandana, my dear son, do it, do it. That's what Krishna said. और कृष्ण ने भगवान अर्जुन से बार बार कहा, कुरु नंदना, मेरे बालक, मेरे पुत्र करो, यह कार्य करो, मेरे पुत्र यह कार्य करो। Baba says, Kuru Nandana, do it, do it. Whatever you do. भगवान बाबा आपसे कहते हैं, कुरु नंदना, मेरे पुत्रों ये सब काम करो। And not only that,
Arjuna has got another quality. Another great quality. सिर्फ इतना ही नहीं, अर्जुन में एक और बहुत अच्छा गुण था। He is expert in his field. वह अपने क्षेत्र में बहुत ही योग्य था, विशेषज्ञ था। In his archery, he is a gold medalist. अपने धनुर्विद्या में उसने स्वर्ण पदक जीता था। Expert in his field. अपने क्षेत्र में एकदम विशेषज्ञ था। No one can face him. और कोई भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकता था। He is a winner every time. और वह हमेशा विजयी ही रहा। Because he is well informed of the skills and the technique of his own specialization, archery. क्योंकि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या के हर एक बारीकी का पूरा ज्ञान था। उसने उस विशेषज्ञता को बहुत मनोयोग से सीखा था। So Arjuna is called Vijaya. और इसलिए अर्जुन को विजय भी कहते हैं। Vijaya means winner. विजय मतलब जो जीतने वाला। Vijaya means triumphant, victorious. विजय अर्थात वह व्यक्ति जो सदैव जीतता है। All of you should be Vijayas. You should be victorious. You should be winners. You should be experts in your field. और इसलिए आप सबको अपनी विधाओं में हमेशा विशेषज्ञ होना है, एक्सपर्ट होना है, और अंततः आप सबको भी विजयी होना है। You may be a doctor, you may be an engineer, you may be a professor, you may be a businessman, you may be a housewife. Be an expert. Then you are Vijaya. आप चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो व्यवसाय करने वाले हो, चाहे घरेलू महिला हो, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से निपुणता हासिल करें, दक्षता हासिल करें, ताकि आप विजयी हो सकें। After all, Kurukshetra battle happened thousands of years ago. वैसे भी कुरुक्षेत्र का रण क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र हजारों साल पहले सजा था। But we read Bhagavad Gita today also. किंतु हम आज भी भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। It is a conversation, a dialogue between Krishna and Arjuna. क्योंकि भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के वार्तालाप हैं। Why should I read their conversation? उनके वार्तालाप को मैं क्यों पढ़ूं? Why? क्यों? Remember, my friends, Arjuna heard from Krishna as our representative, elected representative. मित्रों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से वह सब कुछ सुना, हम सबके चुनिंदे प्रतिनिधि के रूप में। President of India hoists the flag on behalf of the whole nation. भारत देश के राष्ट्रपति जब ध्वजारोहण करते हैं तो वो पूरे देश के प्रतिनिधि के रूप में ध्वजारोहण करते हैं। Similarly, और इसी प्रकार Arjuna heard Bhagavad Gita as our representative of the entire humanity of the past, present and future. और इसीलिए इसी प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को उसी प्रकार सुना जिस तरह कि वो भूत, वर्तमान और भविष्य काल के पूरी मानवता के प्रतिनिधि हो, और प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भगवान से ये सारे उपदेश प्राप्त किए। So he is called Partha. और इसीलिए अर्जुन को पार्थ भी कहते हैं। Prithvi meaning earth, soil. पृथ्वी अर्थात धरती, Partha, sons of the soil. और पार्थ अर्थात धरती का पुत्र। So Arjuna is our representative. और इसीलिए अर्जुन हम सब के प्रतिनिधि के रूप में है। Therefore, everyone is a Partha here listening to Sai Krishna. और इसलिए आप सभी यहाँ पार्थ के रूप में मौजूद हैं जो साई कृष्णा को सुन रहे हैं। Krishna did not teach Bhishma. भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को कोई उपदेश नहीं दिया। Bhishma is not an ordinary man. हालांकि भीष्म कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। He symbolizes Shanta Bhakti. भीष्म शांत भक्ति के प्रतिरूप है। He is a man of sacrifice. Bhishma Pratigya. भीष्म प्रतिज्ञा का आपने नाम सुना ही है। भीष्म त्याग की प्रतिमूर्ति थे। He remained unmarried for the sake of his father. अपने पिता की बात रखने के लिए उन्होंने पूरे जीवन विवाह नहीं किया। He has taken care of Pandavas and Kauravas right from their childhood. और पांडवों और कौरवों के उनके बचपन बाल्यकाल से ही उन्होंने उनकी पूरी रक्षा की, उनका ख्याल रखा। Krishna did not teach Bhagavad Gita to Bhishma. लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को भगवद गीता का उपदेश नहीं दिया, The senior most man. जबकि वो सबसे वरिष्ठ थे। Why? क्यों? Bhishma knows everything but did not follow anything.
भीष्म सब कुछ जानते थे लेकिन किसी भी चीज का पालन नहीं करते थे। He knows Kauravas are bad. वे जानते थे कि कौरव बुरे लोग हैं। He should have left them and joined Pandavas. उन्हें कौरवों को छोड़ देना चाहिए था और पांडवों का साथ देना चाहिए था। He knows what is justice. उन्हें मालूम था कि न्याय क्या है, He never stood by the side of justice. लेकिन उन्होंने कभी भी न्याय का साथ नहीं दिया। In Ramayana, you know, Vibhishana left Ravana and fell at the feet of Rama. इन रामायण में विभीषण ने अन्याय अर्थात रावण का साथ छोड़ दिया और भगवान राम को जाकर के उनका साथ दिया। But Bhishma spent all his life in the company of Kauravas, though he knows they are the dirtiest, stupid idiots of the entire humanity. और जबकि भीष्म ने पूरे जीवन भर कौरवों का साथ दिया, ये जानते हुए कि वो लोग मेरे मूर्ख और नालायक लोग थे। He should have left them like Vibhishana. भीष्म को कौरवों को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए था जिस प्रकार विभीषण ने रावण को छोड़ दिया। So Bhishma knows but never practiced. और इसीलिए भीष्म सब कुछ जानते थे लेकिन उन्होंने उसको कभी जीवन में उतारा नहीं। So Baba's message is not merely to be known, but it is to be put into practice by everybody. Remember that. और इसलिए भगवान बाबा का ये संदेश है कि केवल उपदेश सुनना और ज्ञान अर्जित करना जरूरी नहीं है, उसे अपने जीवन में उतारना भी उतना ही आवश्यक है। Remember this beautiful sentence. और इस बहुत खूबसूरत वाक्य को हमेशा ध्यान रखें। To know is to live. किसी चीज को जानना उसको जीने के बराबर है। Knowing is living. किसी चीज को जानना ही जीना है। If you do not live what you know, all that you know comes under knowledge. यदि आप कोई चीज जो जानते हैं उसको अपने जीवन में उतारते नहीं है, आत्मसात नहीं करते हैं, तो वह ज्ञान आपके किसी काम का नहीं है। What further knowledge? ऐसा ज्ञान किस काम का? Donkey carries on its back sandal pieces, does not know the smell. गधा अपनी पीठ पर चंदन के टुकड़ों को ले जाता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसकी पीठ में क्या लगा है। He buffalo does not know the taste of beaten rice. और जब धान को कूटने के लिए बैल को चारों ओर चक्की में फेरते हैं तब उस बैल को पता नहीं होता कि जो चीज है वो क्या है। So knowledge is allergy if it is not practiced. यदि ज्ञान का उपयोग जीवन में नहीं किया गया तो वह हमारे लिए किसी काम का नहीं है। So Baba's teachings are for those who are ready to practice. और इसीलिए भगवान बाबा के उपदेश केवल उनके लिए है जो उनको जीवन में उतारना चाहते हैं। It is not to gain knowledge. यह केवल ज्ञान अर्जन करने के लिए नहीं है। So boys and girls, और इसलिए बालकों और बालिकाओं practice teachings of Baba like Partha, Vijaya, Dhananjaya, Kiriti, Arjuna. और इसीलिए भगवान बाबा के उपदेशों का अपने जीवन में अर्जुन की तरह पालन करें, पार्थ की तरह, धनंजय की तरह, किरीट की तरह अपने जीवन में भगवान के उपदेशों को अमल में लाएं। What a fine man he is. बहुत अच्छा है। And Krishna did not teach Dronacharya. भगवान कृष्ण ने इसीलिए द्रोणाचार्य को कोई ज्ञान नहीं दिया। Dronacharya is a professor. जबकि द्रोणाचार्य बहुत महान गुरु थे। Acharya. वे एक आचार्य थे। Acharya, professor. वे एक प्रोफेसर थे, आचार्य थे। This professor Dronacharya, like all of us, profess, never practice. प्रोफेसर द्रोणाचार्य ऐसे प्रोफेसर सब शिक्षकों की तरह हैं जो केवल ज्ञान देते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते। Baba does not want professors, he wants practitioners. और भगवान बाबा प्रोफेसर ज्ञान देने वाले नहीं चाहते हैं, वो प्रैक्टिशनर चाहते हैं जो ज्ञान को अपने जीवन में उतार सके, ऐसे लोगों को चाहते हैं। Baba and Krishna did not teach Vidura. भगवान कृष्ण ने विदुर को ज्ञान नहीं दिया। Vidura is an old fellow, retired fellow. विदुर एक बूढ़े थे, रिटायर्ड व्यक्ति थे। मिल गया। What is that old man can do? What is that an old man can do? वैसे भी एक बूढ़ा व्यक्ति क्या कर सकता था?
Therefore, an young man, an eligible man, an expert, a warrior, a brave person, a courageous man, youngster, Sai youth, Arjuna is selected by Krishna. और इसीलिए एक बहादुर, एक योद्धा, एक विजयी, एक युवा, एक साई युवा अर्जुन को भगवान ने चुना है। Therefore, my friends, let us understand to be a member of Sai youth is not an ordinary thing. और इसलिए मेरे युवा साथियों, हम हमेशा इस बात को अच्छे से समझें कि साई युवा होना एक बहुत मामूली बात नहीं है। Just as Arjuna has so many titles like Sabyasachi, Kiriti, Dhananjaya, Arjuna, Falguna, you have so many qualities that you are a man of service, that you are a man of devotion, that you are a singer, you are ready to serve, you have got so many titles, you are all Arjunas. Understand that? जिस प्रकार अर्जुन को ढेर सारे नाम मिले हुए थे, धनंजय, किरीट, और उसी प्रकार आप सब भी गुणों की खान हैं। आप सब बहुत अच्छे गायक हैं, आप सब बहुत अच्छे सेवक हैं, आप सब में ढेर सारे गुण हैं। अपने गुणों का उपयोग करें और अर्जुन के नाम राशि अनुरूप भगवान के आदेशों का पालन करें। Life is a challenge. जीवन एक चुनौती है, Meet it इस चुनौती का सामना करें like Arjuna. अर्जुन की तरह। Do not run away from the battlefield like Uttara Kumara. उत्तर कुमार की तरह युद्ध क्षेत्र से भागे नहीं। This is a famous quotation of Baba. Life is a challenge. Meet it. यह भगवान बाबा का बहुत प्रसिद्ध उपदेश है। जीवन एक चुनौती है, इसका सामना करें। लाइफ इज अ चैलेंज, मीट इट। You understand this? क्या आप समझ गए इसे? I know you are quite smart. मैं जानता हूँ आप सब बहुत स्मार्ट हैं। You should also know that your part is only to play. आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपकी भूमिका इस खेल में खेलने वालों की है। Who is going to win? Who is going to lose? No one can say. इस खेल में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये कोई नहीं कह सकता। Your job is to play, that's all. और आपका काम है केवल खेलना, बस। Play your part. अपनी भूमिका अदा करें। Because you may win or lose, that is a different matter. क्योंकि आप जीते चाहे हारें, यह एक अलग विषय है, यह अलग बात है। Edison discovered batteries. एडिसन ने बैटरी का आविष्कार किया था। He made 1500 attempts, failed. उन्होंने 1500 बार प्रयत्न किए और सभी बार उन्हें निराशा हाथ लगी। Finally, he invented batteries. और अंततः उन्होंने बैटरी का आविष्कार किया। Somebody came and said, और किसी ने आकर के उनसे कहा, "Hi Edison, congratulations! You invented batteries." किसी ने उन्हें आकर के कहा कि एडिसन जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने बैटरी का आविष्कार किया। But लेकिन 1500 times you could not. लेकिन आप 1500 बार उसका आविष्कार नहीं कर पाए। And Edison said, और तब एडिसन ने कहा, "You are wrong. आप गलत कह रहे हैं। I have learned how not to make batteries 1500 times." और तब एडिसन ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, मैंने ये सीख लिया है कि किस प्रकार 1500 तरीके से बैटरी नहीं बनाई जाती है, मैंने वो सीखा है। Therefore, I have known how to make, how not to make, and total now. और इसीलिए मुझे अब ये भी पता है कि बैटरी कैसे बनाई जाती है और कैसे नहीं बनाई जाती है। That is the play of life, game of life. और इसलिए यह जीवन का खेल है। If you win, good. It's an experience. अगर आप जीते बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा अनुभव है। If you lose, better. It is another experience. और अगर आप हार गए तो और भी अच्छा, ये और बेहतर अनुभव है। Good and bad, win or loss, are only experiences. हारना या जीतना, अच्छा या बुरा, यह सब केवल अनुभव का विषय है। In fact, there is nothing like a failure in success. वास्तव में देखा जाए तो हार और जीत जैसा कुछ होता ही नहीं है। Let us call them results. हम उन्हें केवल परिणाम कहें तो बेहतर होगा। Result is neutral. परिणाम हमेशा संतुलित होता है। That result may be a success or a failure. और परिणाम सफलता भी हो सकती है और हार भी हो सकती है। That's why Lord Krishna said, surrender the result to God. Karma phala parityag. और इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा था, कर्म फल परित्याग। कर्म करो,
फल की इच्छा मत करो, फल को भगवान पर छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। Oh boy, you have got every right on action, but not on the result. और भगवान ने कहा था, हे बालक, तुम्हारा प्रत्येक कर्तव्य पर अधिकार है, लेकिन परिणाम पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। Therefore, boys and girls, understand life is a game. और इसलिए युवा साथियों, पहचानो इस बात को कि जीवन एक खेल है, And your part is only to play. और आपकी भूमिका उसमें केवल खेलने तक सीमित है। Don't bother about the results, परिणामों की चिंता मत करिए, because you will gain experience by both of the ways. क्योंकि दोनों ही परिणामों में आपको अनुभव मिलेगा। Because you enjoy while playing, not in the result. और आपको इसीलिए खेल खेलते समय उसका आनंद लेना चाहिए, उसके परिणाम के लिए नहीं। Simple example. एक बहुत छोटा सा उदाहरण। When you are getting ready to attend a wedding, you pack your suitcase with all the dresses, getting ready, imagining many good things. That preparation gives greater joy than the actual wedding. जब आप किसी शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और जब अपने सूटकेस में बढ़िया कपड़े पैक कर रहे होते हैं और जब कपड़े पहन रहे होते हैं और तरह की कल्पनाएं कर रहे होते हैं कि शादी में जाकर के आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वह पूरी तैयार होने की प्रक्रिया में जितना आनंद है उतना आनंद शायद शादी में पहुंचने के बाद आपको नहीं आता। If you want to go to a cinema or a movie, you dress and stand in front of a mirror. That gives greater joy than watching the cinema. आप किसी फिल्म को देखने जाते हैं तो उसके जाने की तैयारी के समय कपड़े पहनते हुए और कल्पनाएं करते हुए आपको जो आनंद आता है उतना आनंद शायद आपको फिल्म देखने में नहीं आता है। Therefore, Baba says, Lord Krishna said, don't get attached to karma phala or results. और इसलिए भगवान बाबा ने कहा है कि कर्म फल से आप किसी भी तरह से आबद्ध न हो, परिणामों के प्रति आप मोह न रखें, परित्यागी बने, sacrifice the result. परिणामों को त्याग दे, उनके प्रति मोह न रखें। Be happy doing your work. अपना कार्य करते समय प्रसन्न चित्त रहे, आनंद मग्न रहे। So life is a game played. और इसलिए जीवन एक खेल है जिसे खेलिए, Not bothered about the results. और जिन परिणामों की कोई चिंता ना करें। How should you play? और किस तरह से खेलना चाहिए? Very well. एकदम बहुत अच्छे से खेल खेलें, Like an expert. एक विशेषज्ञ की तरह। It's not match fixing business. आज की तरह मैच फिक्सिंग जो होती है वैसा नहीं, एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह खेलें। You should do it in an excellent way. Yoga karmasu kaushalam. योगः कर्मसु कौशलम। आपको जो भी कार्य करना है, जो खेल खेलना है, उसमें आपको अपनी गुणवत्ता का बेहतरीन प्रयोग करना है। Karma, action. कर्म अर्थात क्रिया, एक्शन। Kaushala, skill. कौशल अर्थात गुण, स्किल। Sukaushala, और सुकौशला अर्थात अपने कौशल को बेहतर ढंग से उपयोग करना। expertise. विशेषज्ञता। Yoga karmasu kaushalam. Any action performed with all the expertise is called yoga. कोई भी कार्य अपनी पूरी विशेषज्ञता के साथ पूरे मनोयोग से अगर किया जाए तो उसे ही योग कहते हैं। Therefore, boys and girls, और इसलिए मित्रों, do your karma activity as a professor, as a student, as an engineer, as a doctor, as a householder, as a housewife, whatever may be. Do your job excellently. That is yoga. आप जो भी काम करना चाहें, प्रोफेसर की तरह, डॉक्टर की तरह, इंजीनियर की तरह, घरेलू महिला की तरह, आप जो काम करें पूरे मनोयोग से अपने जीवन के बेहतरीन क्षणों का अपने पूरे कर्मठता से उसके साथ अपने कार्यों को करें और वह योग में परिवर्तित हो जाएगा। We think yoga means sitting straight like that. But sometimes आपको ऐसा लगता होगा कि योग का मतलब होता है पीठ सीधी करके बैठना। at the end you will get back pain. That's all. और अंततः उससे केवल आपकी पीठ में दर्द होगा और कुछ नहीं होगा। It is not yoga. एक्चुअली यह योगा है ही नहीं, It is physical exercise. यह केवल भौतिक रूप से शारीरिक एक्सरसाइज है। Doing your duty to the best of your ability is yoga, says Krishna. भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपने कर्तव्यों का पूरी कर्मठता से पालन करना ही योग है। Yogam kartavyam uchyate.
योगम कर्तव्यम उच्यते, अपने कर्तव्य का उच्च कोटि के तरीके से पालन करना ही योग्य है। अरे वाह, कर्तव्य is a duty. कर्तव्य is duty. आपका कर्तव्य ही महत्वपूर्ण है। Therefore, learn to do your duty, that is yoga. और इसीलिए अपने कर्तव्यों का पालन करें, वह ही योगा है। Without thinking of the result. केवल योग करते समय परिणामों की चिंता भर ना करें। That is what life is a game played. और इसीलिए जीवन एक खेल है जिसे पूरे मनोयोग से खेलें। If you start playing, am I going to win or lose? Am I going to win or lose? You are lost already. यदि खेल शुरू होने के पहले ही आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा, कि जीतूंगा कि हारूंगा, आप पहले ही हार चुके हैं। Come on, play. That will decide later. आओ खेलें, क्या होगा परिणाम उसकी चिंता बाद में करेंगे, अभी मत सोचो। Life is a game please. और जीवन एक खेल है, आओ मिलके खेलें। And please understand one more important point. एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखें। One girl says, "Sir, no one loves me at home." एक लड़की कहती है कि मुझे घर में कोई प्यार नहीं करता। A boy comes and says, "Sir, no one loves me in the classroom." एक और लड़का आता है और मुझसे कहता है कि मेरी कक्षा में मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। An officer tells me, "No one likes me in the office." एक अधिकारी आता है और कहता है कि मेरे पूरे कार्यालय में कोई मुझे चाहता नहीं है। That's why most of the top people have long, serious Shakespeare faces. और इसीलिए अधिकांश लोगों के चेहरे लंबे और लटके हुए होते हैं, बुझे हुए। Because no one loves them. क्योंकि कोई वही प्रेम नहीं करता, कोई वही प्यार नहीं करता। Yesterday somebody asked me, कल मुझसे किसी ने पूछा, "Sir, why do I feel lonely?" सर मैं एकदम इतना अकेला क्यों महसूस करता हूँ? "Sir, why do I feel that nobody is caring for me?" सर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा कोई ख्याल नहीं रखता है? I'll tell you the secret. मैंने उसे कहा कि मैं तुमको इसका रहस्य बताता हूँ। Open challenge, you try it, you'll be 100% successful. और मैंने कहा मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, तुम इसे प्रयास करो, तुम 100% सफल होगे। When you love everybody, all will love you. तुम यदि सबसे प्रेम करोगे, सब तुमको प्रेम करेंगे। When you love few, only those few will love you. अगर तुम केवल कुछ लोगों से प्रेम करोगे तो केवल वही लोग तुमसे प्रेम करेंगे। If you love one, that one only loves you. और अगर आप केवल एक व्यक्ति से प्रेम करेंगे तो केवल वही एक व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा। That one loves you in the morning, hates you by the evening. और वह भी सुबह आपसे प्रेम करेगा, शाम को आपसे घृणा करेगा। See, it's a shame. It's a shame. यह एक शर्म की बात है। Well, I love everybody, all youth from Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Yes, I know. और मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आए सारे युवाओं से प्रेम करता हूँ। Therefore, all of you love me now. और इसलिए आप सब मुझसे प्रेम करते हैं। Therefore, we should know what love is. और इसलिए हमें जानना चाहिए कि प्रेम है क्या। First of all, love yourself. सबसे पहले तो खुद से प्रेम करो। Do I love myself? क्या मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ? Many people don't know how to love one's own self. बहुत लोग ये जानते ही नहीं है कि खुद से प्रेम कैसे करना है। Why? क्यों? Some complex. क्योंकि मन में कुछ न कुछ ग्लानि रहती है। He's taller than me. वो मुझसे ज्यादा लंबा है। More good looking than me. वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत दिखता है। He gets more money than me. उसको मुझसे ज्यादा पैसा मिलता है। He is more popular than me. वो मुझसे ज्यादा प्रसिद्ध है। So you don't love him. और आप इसलिए खुद से प्रेम नहीं करते। You love him for his height. You love her for money. You love her position. You don't love yourself. आप किसी को प्रेम करते हैं उसकी लंबाई के कारण, किसी से प्रेम करते हैं उसकी ऊंचाई के कारण, किसी से प्रेम करते हैं उसके पैसे के कारण। आप खुद से ही प्रेम नहीं करते। First love yourself, then you know how to love others. सबसे पहले तो खुद से प्रेम करो, तब तुम दूसरों से प्रेम करना सीखोगे। And there are some people who go on complaining. कुछ लोग होते हैं जो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। That fellow did that thing, I cannot excuse him. उस आदमी ने ऐसा कर दिया, मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। I cannot excuse him at all. मैं बिल्कुल उसे नहीं छोड़ूंगा। You say that. ऐसा आप लोग कहते हैं। Why don't we excuse people? हम क्यों किसी को माफ नहीं कर देते? Why Baba is able to excuse everybody? और भगवान बाबा क्यों सबको माफ कर देते हैं? He is able to excuse everybody because his unconditional love. भगवान बाबा
सबको माफ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वह सबसे निश्चल प्रेम करते हैं। His unconditional, selfless love makes him excuse, forgive everybody. और भगवान का यह निश्चल प्रेम उन्हें यह अधिकार देता है कि वे किसी को भी माफ कर सकते हैं और सभी को माफी दे सकते हैं। But do you excuse yourself first? और क्या आप स्वयं को कभी माफ करते हैं? There are some people that come and tell me, Anil Kumar, I'm not going to attend bhajans. I'm not regular to bhajans. They feel very bad. कुछ लोग आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि प्रोफेसर अनिल कुमार, मुझे बड़ा खराब लगता है, मैं भजन नहीं गा पा रहा हूँ, मैं भजन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भजन में जा नहीं पा रहा हूँ और मैं अपने आप के प्रति बड़ा गंभीर रूप से ग्लानि महसूस करते हैं। Some say I'm not able to attend service activity. और कुछ लोग बड़े दुखी रहते हैं कि वे सेवा गतिविधियों में भाग नहीं ले पा रहे हैं। He's not able to excuse himself. वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा। How do you excuse others? वो दूसरों को क्या माफ करेगा? First excuse yourself. पहले अपने आप को माफ करना सीखो। All right, I'm not attending bhajans. All right, I excuse myself. From this Sunday I will attend. ये होना चाहिए कि चलो ठीक है, मैंने आज तक भजन नहीं गया, कोई बात नहीं, लेकिन इस रविवार से अब मैं भजन निरंतर जाऊंगा। अपने आप को तो माफ करो। I have these bad habits. Well, I excuse myself. I'll stop them from tomorrow. मेरे में बहुत सारे दुर्गुण हैं, लेकिन ठीक है, मैं अपने आप को माफ करता हूँ, मैं कल से ये सारे दुर्गुण छोड़ रहा हूँ। But we don't do that. लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। Many people come and tell me I have very bad habits. I used to you don't know what I was. And stop that nonsense. I'm not bothered about your biodata, which is nonsense. बहुत लोग आते हैं मेरे पास और रोते रहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं बहुत बुरे गुण हैं और कहते हैं आप जानते नहीं हैं कि मैं कितना बुरा आदमी था। तो मैं कहता हूँ कि चुप रहो, बकवास मत करो, तुम बुरे हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? You may be bad, so what? आप बुरे होंगे, मुझे उससे क्या? You may have bad habits, so what? आप में बहुत सारे दुर्गुण होंगे, तो मैं क्या करूँ? You might have committed mistakes, then what? आपने ढेर सारी गलतियां की होंगी, तो मैं क्या करूँ? After all, to err is human. गलतियां करना तो मानवीय प्रवृत्ति है। Let us learn to excuse ourselves first. सबसे पहले हम अपने आप को माफ करना सीखें, so that we can excuse others. ताकि आप दूसरों को माफ करने का गुण अपने आप में ला सकें। Let me respect myself so that I can respect you. सबसे पहले मैं अपने आप की इज्जत करना सीखूं, तब तो मैं दूसरों की इज्जत करूंगा। Life is love shared. जीवन प्रेम है, सबसे मिल बांट कर करें। When you love, it goes on increasing eternally, infinitely. और जब किसी से आप प्रेम करते हैं, चारों ओर प्रेम फैलाते हैं, तो वो अनंत रूप में बढ़ता जाता है। Love is an endless ocean and a vast sky. प्रेम एक अंतहीन सागर है और एक अंतहीन आकाश है। When you love, it goes on increasing. जब आप प्रेम करते हैं, तो बढ़ता ही जाता है। When it is selfless, it is so vast. और जब वह निश्चल प्रेम है, तो वह उसकी कोई सीमा नहीं। When it is unconditional, it is totally divine. और जब किसी बिना शर्त के आप किसी से प्रेम करें, तो वह देवी प्रेम हो जाता है। You know, when small children from primary school also come to me there in Mandir. क्या आप जानते हैं, प्राइमरी स्कूल के छोटे छोटे बच्चे मंदिर में मुझसे आकर के मिलते हैं। And some who are not my students, MBA boys, MTech boys, PhD boys, they also come to me. और कुछ MBA, MTech और PhD के छात्र भी आकर के मुझसे मिलते हैं। People ask me, Anil Kumar, why they come to you? लोग मुझसे पूछते हैं कि अनिल कुमार जी, ये सब छात्र आपसे आकर के क्यों मिलते हैं? I tell them, I go to them, therefore they come to me. और मैं उनको बताता हूँ कि चूंकि मैं उनके पास जाता हूँ, इसलिए वो मेरे पास आते हैं। I don't think that I'm a professor, after all he's a chokra. I don't think like that. मैं कभी इस तरह की भावना नहीं रखता हूँ कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और वो तो कल का छोकरा है, मैं उससे क्यों बात करूँ? I go on mixing with students, telling jokes. और मैं छात्रों के साथ मिलता हूँ, तो हंस खेल कर उनके साथ चुटकुले सुनाता हूँ। One fellow got less marks. एक छात्र को कुछ कम अंक मिले And he has put a sorrowful face. और उसके चेहरा एकदम लटका हुआ था। A young boy after all. मैंने कहा कि छोटा लड़का है। I cannot see any serious face, impossible. असंभव है, मैं किसी के लटके हुए बुझे हुए चेहरे देख ही नहीं सकता। I cannot see anybody cry, no. मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकता। So I went to that boy. मैं उस बच्चे के पास गया, And I well, मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो?
I got less marks. तो उसने कहा कि मुझे बहुत कम अंक मिले हैं परीक्षा में, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। I just asked her, what's your name? मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? Sir, I'm Manish, he said. उसने कहा मेरा नाम मनीष है। Where do you come from? और तुम कहाँ से आए हो? West Bengal. उसने कहा मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ। I asked him, अरे Manish, did you meet Manisha Koirala anytime? और मैंने उससे पूछा कि मनीष तुम कभी मनीषा कोइराला से मिले हो? Oh, that's all. और वो खुद खुशी से उछल पड़ा। And you'll be more joyful by making others joyous. आप जीवन में तभी बहुत प्रसन्न होंगे जब आप दूसरों को खुश करेंगे। You can smile more when you make others smile. जब आप दूसरों को मुस्कुराने की प्रेरित करेंगे तो आप ज्यादा मुस्कुराएंगे। That's what I do. और यही आपको करना चाहिए। There's one boy who is in France now, Shubhu. शुभू नाम का एक बालक है, He is doing his PhD. वह PhD कर रहा है। But I saw one day he was sitting all alone. मैंने देखा कि एक दिन वो अकेला एक कोने में बैठा हुआ था। What happened to you? मैंने पूछा कि क्या हो गया भाई तुमको? Sir, warden scolded me, sir. उसने कहा साहब वार्डन साहब ने मुझे डांट दिया है। Alright, Shubhu, where do you come from? मैंने पूछा अरे शुभू तुम कहाँ से आए हो? Sir, I'm from Tamil Nadu. उसने कहा साहब मैं तमिलनाडु से हूँ। Alright, do you know Khushbu film actress, right? मैंने उससे पूछा कि तुम खुशबू Khushbu fan. He was very smiling. Khushbu famous film actor from Tamil Nadu. All teeth exposed. मैंने जैसे ही पूछा कि तुम खुशबू को जानते हो, वहाँ की बहुत फेमस फिल्म की हीरोइन है। वो इतना खुश हो गया कि उसके पूरे दांत दिखने लगे। I was so happy to see smiling faces. मुझे उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर बेहद खुशी हुई। Life is love, share it. और जीवन प्रेम है, उसे बांटें। The more you share, it grows more and more. जितना प्रेम आप बांटेंगे वह उतना बढ़ेगा। Baba's love is infinite because he goes on sharing his love with everybody. भगवान का प्रेम अनंत है क्योंकि वह सभी के साथ अपना प्रेम बांटते हैं। And his level of talking is also will be different depending upon the age group. भगवान के बात करने का तरीका भी किस उम्र के लोगों से बात कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। There in Kodaikanal, we eat in the company of God, Baba. कोडाईकनाल में हम सभी लोग भगवान के सानिध्य में बैठकर भोजन करते हैं। And lunch or dinner with Baba is a royal banquet. और भगवान के साथ बैठकर भोजन करना वास्तव में एक राजसी गतिविधि है। 5 sweets, 5 hearts, ice creams, fruit salads, wow. 5 तरह की मिठाइयाँ, 5 तरह की सब्जियाँ, फलों का स्वाद, बहुत शानदार भोजन रहता है। And he likes when we eat. और भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है जब हम लोग सब खाते हैं। He wants to eat, come on, eat more. और वे बार-बार कहते हैं कि और खाओ, मैं देख रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है। And he'll watch from the corner. और एक कोने से भगवान देखते रहते हैं। If he sees that you like rasagola, भगवान देखते हैं कि अगर आपको रसगुल्ला पसंद आ गया है, he'll give some indication to boys there. तो वो दूसरी तरफ छात्रों को इशारा करते हैं। इसे लाकर के रसगुल्ला परोस दो। Serve him one more rasagola. एक और रसगुल्ला इसे परोस दो। What? He will score. और आप खाते जाते हैं। And then at the end of one full month, और एक पूरे महीने के बाद we put on weight. हम सबका वजन बढ़ जाता है। And then when we look at one boy, और आप जब किसी एक छात्र को देखते हैं, अरे your paunch tummy, 3 months gaining yes. किसी छात्र को देखते हैं जिसकी तोड़ निकले तो बोलते हैं भैया 3 महीने का बच्चा है क्या? And you look at another part of the tummy, अरे 6 months. दूसरे बेटे को देखते हैं बोलते भैया 6 महीने का है। So we tell him, अरे 6 months और कोई तीसरा छात्र जिसने बहुत खाया होगा उसे कहते हैं भैया 9 महीने का है। He always laughs, cracks jokes, enjoys. और भगवान हमेशा हंसते रहते हैं, चुटकुले सुनाते हैं और खूब आनंद लेते हैं। Because life is love. क्योंकि जीवन प्रेममय है, इसे सबसे बांटो। And there was one man in the veranda.
He was walking like that. वरांडा में एक व्यक्ति इस तरह से चल रहा था। Swami was passing by that side. भगवान वहां से निकले। He has got 6 months case. उसे 6 महीने का जैसा मामला दिखता था। And Baba said, that man was passing. Baba said, look at that fellow. He looks like a question mark. भगवान ने कहा कि साधु ने देखा प्रश्न चिन्ह जैसा दिखता है। Jokes. पूरे समय भगवान के मन में विनोदी स्वभाव रहता है, चुटकुले रहते हैं। A man of love always smiles. A man of love is full of wit and humor. जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम है वह हमेशा विरोधी स्वभाव का रहेगा, वो हमेशा हंसता रहेगा, हमेशा चुटकुले सुनाता रहेगा। A man of love is egoless. जो व्यक्ति में जीवन में प्रेम है उसमें कभी अहंकार नहीं होगा। Please understand, life is love. Share it. कृपया समझें, जीवन एक प्रेम है, सबसे मिलें, सबसे बांटें, प्रेम को बांटें। Life is a challenge, you meet it. जीवन एक चुनौती है, इसका सामना करें। We have known sufficiently enough about it. हम इसके बारे में आप काफी जान रहे हैं। Life is a game played. We have known about it. जीवन एक खेल है और हमें खेलना है, ये भी हम समझ गए हैं। Life is love, share it. We have known about it. जीवन प्रेम है, सबसे मिलके बांटना है, ये भी हम समझ गए हैं। In the early hours of the morning, भोर में सुबह you find cuckoo birds. आपने कुकू को, कोयल को बाग देते हुए सुना होगा, मुर्गे को बाग देते हुए सुना होगा। So when you say that, it sings again. जब आप सुबह कोयल के आवाज पर वापस सीटी बजाते हैं तो कोयल पुनः जवाब देती है। Is it not? क्या ये सही है कि नहीं है? Yes. Sit in the train. आप As you sit in the train, ट्रेन में बैठते हैं, you find a rhythm beat. A beat rhythm is there. जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो आपको एक तरह का ताल सुनाई पड़ता है, आपने ध्यान से सुना होगा। Stand near the ocean. आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाएं, The waves, they have music. There's music there. लहरों में भी संगीत होता है। And watch the wind blowing heavily. रात में There's music there. तो तेज हवा को आपने बहते सुना होगा, उसमें भी संगीत होता है। Life is music. Sing it. भगवान कहते हैं कि जीवन एक संगीत है। Life is music. Understand that. जीवन एक संगीत है। A man who loves music is a happy man. ऐसा व्यक्ति जो संगीत से प्रेम करता है वह जीवन में सदैव सुखी रहेगा, प्रसन्न रहेगा। A man who sings is a healthy man. ऐसा व्यक्ति जो गाता है वह हमेशा संतुष्ट रहेगा, हमेशा हृष्ट-पुष्ट रहेगा। A man of music is a man of culture. जो व्यक्ति संगीत में रुचि रखता है वही व्यक्ति संस्कृति में रुचि रखता है। Life is music. Sing it. जीवन एक संगीत है जिसे मिलकर के गाओ। Why? Because many people, foreigners here, they don't know Hindi or English or any of the Indian languages. बहुत सारे विदेशी मूल के लोग यहाँ आते हैं जिन्हें हिंदी या कोई भी दूसरी हमारी स्थानीय भाषाएं नहीं आती, किंतु उन्हें भजन में बहुत आनंद आता है। Why? क्यों? Music is not language. क्योंकि संगीत की कोई भाषा नहीं होती। Music is beyond language. संगीत भाषाओं से ऊपर है, भाषातीत है। Music is our heartbeat. क्योंकि संगीत हमारे हृदय की धड़कन है। Music has got effect of vibration, pulsation in our life. क्योंकि संगीत हमारे जीवन में तरंग पैदा करता है, हमारे जीवन में धड़कन पैदा करता है। There in Mexico, which I visited, मैं जब मेक्सिको देश गया था, I got this habit of singing, though I'm not a good singer. I got the habit of singing, but I'm not a good singer. I know that. मुझे गाने की आदत है, हालांकि मैं अच्छा गायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे गाने की आदत है। When I was singing, Gopi Kamala Hari Pyari Mai Meera Mana Vihari Madana Mohan Murali Dhari Krishna Jai. That's what I was singing. जब मैं इस तरह से गीत गा रहा था, गोपी कमाले माई हारी मदन मोहन मन विहारी माई मीरा। In Mexico, they speak Spanish language.
मेक्सिको में वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। About 5,000 people are there in the gathering. अब करीब 5,000 लोग वहाँ बैठे हुए थे। There at the end in a corner, वहाँ पर एक कोने में पीछे तरफ I saw one man dancing. मैंने देखा एक व्यक्ति नाच रहा था। The Mexican dancing is very typical. मेक्सिकन नृत्य बहुत ही विशेष होता है। They keep both the hands near the waist. ये दोनों हाथ अपने कमर पर ऊपर रखते हैं। Gopika Mala Hari Pyari Mai Veera Madana Mohana Muralidhari. That's what he was doing. मेरे भजन पर कमर पर हाथ रख के अपने दोनों पैरों से नृत्य कर रहा था। I noticed it from the dais. मैंने ऊपर से देखा उसको नृत्य करते हुए। I asked the orchestra people, you carry on. मैंने ऑर्केस्ट्रा वालों से कहा कि आप लोग बजाते रहो। I went to him there at the end. और मैं पीछे उसके पास गया। Gopika Mala Hari Pyari Mai Veera Madana That's what happened in Mexico. और मैं तब जाकर के उसके साथ नृत्य करने लगा। मैं भी गाने लगा, वो भी नृत्य करने लगा। Why? Because music is life. क्योंकि संगीत ही जीवन है। It gives vibration. क्योंकि जीवन में इसमें तरंगे आती हैं। They go on singing. और हम गाते जाते हैं। I visited one place by the name Rio in Brazil. मैं ब्राजील में रियो नाम के स्थान पर गया। In Rio, the whole Brazil, for that matter, is a country that loves music. पूरे ब्राजील देश में हर कोई संगीत प्रेमी है। Well, people said, be careful in Brazil. लोगों ने कहा कि ब्राजील में जरा संभल कर रहना। Miss Anil, if you dance like this, everybody will start dancing. लोगों ने कहा कि ब्राजील में संभल कर रहना, अगर वहाँ आपने स्टेज पर नाचना शुरू किया तो सभी लोग नाचना शुरू कर देंगे। When they start, you cannot stop. जब वो शुरू करते हैं तो आप उनको रोक नहीं सकते। And I said, छोड़ दो, let us see. मैंने कहा कि छोड़ो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। There at one stage I was just singing. और जब मैं वहाँ स्टेज पर भजन गा रहा था, अंतरंग साई अनाथनाथ साई अंतरंग साई दीन बंधु साई करुण सिंधु साई अंतरंग साई अनाथनाथ and all the 1,500 fellows got up. अंतरंग Then they started doing it. और मैंने जैसे ये भजन गाना शुरू किया, पूरे 1500 लोग खड़े हो गए और वो लोग भी सब मेरे साथ नाचने लगे। Life is music, sing it. जीवन संगीत है, मिलकर के गाओ। Because bhajan songs will encourage you. क्योंकि भजन आपको प्रेरणा देते हैं। Bhajan will support you. भजन आपको सपोर्ट करते हैं। When you are alone and frustrated, bhajan will give you energy. जब आप अकेले होंगे और बहुत दुखी होंगे, तब भजन आपको शक्ति देगा। दर्शन दीजो देव देवा दीनानाथ साही नाथ देवकी तनया दयानिधे कृपानिधे देवकी तनया। He is there ready, come on. He is ready to help you. Bhajan song, and you just sing it, seeking his guidance and help. He is ready at your doorstep. जब आप भजन गाते हैं और मन से गाते हैं तो भगवान आपके पास आने के लिए, आपका सहायता करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। भुवनेश्वरा अखिलेश्वरा गुण गंभीरा साईश्वरा दया सागरा करुणा करा। Is there man of compassion right in front of you? जब आप इतने मन से भजन गाते हैं तो भगवान आपके ठीक सामने खड़े होते हैं आपकी रक्षा करने के लिए। Life is music, sing it. और इसलिए मित्रों, जीवन संगीत है, मिलकर के गाओ। Life is very beautiful. जीवन बहुत खूबसूरत है। Life is worth living. जीवन जीने लायक है। Life is enjoyable. जीवन पूरी तरह से आनंद लेने के लिए। Life is divine. जीवन दैवी है। Life is God. जीवन ईश्वरीय है। Therefore, never underestimate life. और इसलिए कभी भी अपने जीवन को कमतर मत आंको। There are some people say, I am bored with my life. कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने जीवन से तंग आ गया हूँ। I don't know why I am living. मुझे पता नहीं मैं क्यों जी रहा हूँ। No one knows why I am living.
पता नहीं कोई भी नहीं जानता मैं क्यों जी रहा हूँ। अरे see, you are living for your own self. You are not living for anybody. चुप रहो, तुम किसी और के लिए नहीं जी रहे हो, तुम केवल अपने लिए जी रहे हो। Living is an art. जीवन जीना भी एक कला है। It is Ravi Shankar, Guruji, who says, art of living. आदरणीय रविशंकर जी गुरुजी वो कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, So if जीवन जीने की कला। art of living is Ravi Shankar, art of life is Satya Sai Baba. और अगर आर्ट ऑफ लिविंग रविशंकर जी, तो आर्ट ऑफ लाइफ भगवान श्री सत्य साई बाबा है। Understand that? क्या आप समझे इस बात को? Living, Mari. Living, yes, art of living, how to make money, I can understand. But this is Satya Sai Baba says, art of life, how to live well. जीवन की कला, जीवन जीने की कला है आर्ट ऑफ लिविंग, लेकिन जीवन ही कला है आर्ट ऑफ लाइफ। I thought that I should talk to you about life to these youngsters. मैंने सोचा कि आज मैं जीवन के बारे में आप सभी युवाओं से बात करूं, Because you have long life ahead of you. क्योंकि आप सबके जीवन में आगे बहुत लंबा जीवन है। You are long journey passengers in the train of the world. आप सब लंबी दूरी के यात्री हैं। You are something like a connecting train from Kanyakumari to Kashmir. आप लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एक लंबी दूरी की ट्रेन के यात्री हैं। Whereas seniors and elders will have to get down the next platform. जबकि हम वरिष्ठ लोग जो है उन्हें अगले प्लेटफॉर्म पे उतरना है। Therefore, you should know what life is. और इसलिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जीवन क्या है। Be respectful to life. जीवन के प्रति आदर रखें। Religion is life positive. आध्यात्म धर्म जीवन का सकारात्मक पहलू है। Religion is life affirmative. जीवन धर्म जीवन का सकारात्मक पहलू है। Life is not negative. जीवन नकारात्मक नहीं है, Life is positive. जीवन ही सकारात्मक है। Therefore, positivity is a divinity. और इसलिए सकारात्मकता ही ईश्वरत्व है। That positivity, which is the divinity, should be the whole humanity. और इसलिए वह सकारात्मकता जो कि ईश्वरत्वता है वही पूरे मानवता में होना चाहिए।
in your hearts forever and ever. May He guide your lives. May He bless all your parents. May He bless all your friends and relatives. May Bhagavan be a torchbearer, a light who kindles our heart. May your lives be blissful, joyful, healthy, wealthy, and wise. Samartha Sadguru Sai Nath Baba Maharaj Ko